reporters will be joining us on the phone line to tell us more about how the politics over this mic muting charge is escalating at this point of time, with the opposition in no mood to relent. A stormy session expected in the parliament, with the opposition today trying to corner the government on the issue of criminal laws. We've also seen uproar in the parliament over the NEET issue. But like we've been telling you, as the proceedings of the House continue, a short while back, Lok Sabha Speaker Om Birla has come out and has clarified once again over the charges levelled against him by the Congress party. It was the Congress party that first said that this is a mic off Sarkar. It came at a time when Rahul Gandhi last week stood up to speak on the NEET issue. After that, the Lok Sabha Speaker had said that this is the time and this is the norm to speak on the president's address. After which, but let's also now play out that reaction that has come in from Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju, his appeal to the opposition. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 10। Kiren Rijiju ji. Sir, with your kind permission, I rise to move that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 7 members from Rajya Sabha for being associated with the Committee on Public Undertakings of the House for the term ending on 30th April 2025 and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 11 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, with your kind permission, I rise to move that the members of this House do proceed to elect in the manner required by Sub-Rule 1. All right, so the Lok Sabha's proceedings are currently underway. Kiren Rijiju spoke a short while back, and earlier he had also sent out an appeal to the opposition. One of the issues addressed by the Speaker today is the charge made by the opposition on the mic off controversy. What did the Speaker say? Let's listen into it once again. माननीय सदस्यगण, एक विषय मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब सदन भी इस पे चिंता व्यक्त करें। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आप वर्षों तक, आपको कई साल हो गए, आपका अनुभव है। मेरी बात सुनिए, आपका अनुभव है, आप मुझसे भी वरिष्ठ हैं, आप पुराने सदन में भी हैं, नए सदन में भी हैं। आसन से एक व्यवस्था रहती है, जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है। आसन व्यवस्था दे देती है दूसरा नाम, तो दूसरा पुकारा जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं, और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो। और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है। इसलिए मेरा आग्रह है, आप कभी भी कोई भी व्यक्ति सभापति तालिका पर आसन पर बैठे हैं, इस तरीके का आक्षेप नहीं करेंगे तो उचित रहेगा। संविधान की मर्यादा के अनुसार रहेंगे। माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं। सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में क्या? आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? नहीं है ना? फिर बोला नहीं है। सुरेश जी ने कहा नहीं है कंट्रोल। आप सुरेश जी की बात नहीं मानते? नो। All right, so Speaker Om Birla there, asking the Congress party and their senior MPs, is it true or not that the control of the mic in the Lok Sabha is never in the hands of the Speaker? Then how can such allegations be made? So the controversy over the mic off charge is also escalating this Monday as the Parliament resumes. Amit Kumar is joining us live as we break down the details. Last week, Amit ji,
माइक ऑफ के ऊपर एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, जिसपे कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पे ये आरोप लगाया था कि लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने राहुल गांधी का माइक म्यूट कर दिया था और उन्होंने ये भी कहा है कि डेमोक्रेसी म्यूट करने की एक अटेम्प्ट किया गया था। आज स्पीकर ने खुद कांग्रेस पार्टी के सीनियर एमपी से भी ये बात पूछ लिया कि क्या आप बता सकते हो कि हमारे हाथ में कंट्रोल होता है कि नहीं। इस मुद्दे को ये कंट्रोवर्सी और कैसे स्नोबॉल करेगा, इसके ऊपर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, ये जो घटना थी ये 28 तारीख की है, जिस समय सुबह जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उस समय इस बात को लेकर राहुल गांधी कह रहे थे कि सबसे पहले चर्चा शुरू होनी चाहिए उस पर, नीट को लेकर, और उस पर सरकार जवाब दे, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। और उस दौरान जब स्पीकर ने कहा कि आपकी जो बातें हैं ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगी, मैं एक चीज कहूंगा क्योंकि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को बहुत सालों से मैं कवर कर रहा हूं, उसमें जो नियम जो उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को कहने के लिए कहा जाता है फिर उनका माइक ऑन होता है, उसी तरह से अगर जिस वक्त ये कहा जाता है कि आपकी बातों को अब ऑन रिकॉर्ड नहीं होगा, इसके साथ ही उनका माइक बंद कर दिया जाता है जहां पर सिस्टम कंट्रोल है वहां पर, और ये सिस्टम कंट्रोल स्पीकर के पास नहीं होता है। स्पीकर का जो बोलते हैं उसके आधार पर माइक को ऑन ऑफ किया जाता है। और इसी बात को ओम बिरला ने बड़ी प्रमुखता से इस बात को सामने रखा कि जो बातें हुई है या जिस तरह के आरोप लगे हैं वो गलत है, इस तरह के आरोप नहीं लगने चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है कि सीधे सीधे स्पीकर पर आरोप लगे, क्योंकि अपोजिशन के लोग भी उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं और इस तरह की ये बात हमेशा विपक्ष की तरफ से होता है। तो इसी बात को आज क्लैरिफाई किया उन्होंने, क्योंकि एक सीधा सीधा आरोप जो था वो स्पीकर पे था, और इसीलिए स्पीकर ने पूरी सफाई के साथ पूरी बातों को समझाते हुए कहा कि इस तरह की चीजें नहीं होती है, किसी भी तरह का बटन नहीं होता है और एक व्यवस्था के तहत काम चलता है, और अगर ये व्यवस्था नहीं होगी तो फिर गड़बड़ होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर एक साथ सारे माइक ऑन हो जाएंगे तो फिर व्यवस्था नहीं बन सकती है। तो वही बात को उन्होंने दोहराया है और इस बात को एक तरह से सहमति जताई सुरेश ने भी, कि उन्होंने भी कहा इस बात को लेकर, जब ओम बिरला ने पूछा कि आप भी यहाँ कुर्सी पर थे, क्या आपने इस तरह का कोई माइक देखा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बटन नहीं होता जिससे माइक बंद किया जा सके। तो जो हंगामा या जो सीधा आरोप लग रहा था ओम बिरला ने उस पूरी बात को सबके सामने रखा कि इस तरह की कोई व्यक्तिगत राइवलरी नहीं होती है कि किसी का माइक ऑफ कर दिया जाए, व्यवस्था बनाने के लिए ये व्यवस्था है। नहीं, और अमित जी, ये जो 2 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला था और उन्होंने स्विचिंग ऑफ डेमोक्रेसी उसका टैगलाइन लिखा था, एंड उस दिन उनका सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि जो लोकसभा जो एलओपी है राहुल गांधी, उनका माइक ऑफ कर दिया गया। राज्यसभा में भी उन्होंने यही कहा था कि ये राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ भी यही हुआ था। पर आज स्पीकर, टुडे द स्पीकर हैज इन फैक्ट not only explained but very firmly taken his question to the leaders of the opposition itself and has asked them, all of us are sitting, when we sit on this chair, why don't you come and tell us, is there a system to switch off mics? And he asked that question to leaders of the opposition itself. Anamika is also joining us. Anamika, as the speaker explains over the controversy or the charge that was leveled against him, is there a strategy in the Congress party to escalate the issue? Well, this matter is not just about the Congress party, but the entire opposition had made this allegation upon the speaker that whenever the opposition tries to raise certain matters which are related to the country. All right. And Anamika, I have to apologize to interject. Let's cut to